Dear students, very good afternoon. How are you? Dear students, today we are going to discuss a very important topic, Bohr theory of hydrogen atom. This is the most important topic. So without wasting any time, let's start. Let us suppose that we have an electron having charge minus E is revolving in the circular orbit with velocity v. Let us suppose that we have an electron having charge minus E is revolving in a circular orbit on the nucleus with velocity v. ठीक है? Okay. So let us suppose that we have an electron having charge minus C is revolving. Let us suppose that we have an electron having charge minus E is revolving in a circular orbit, with velocity v. Clear है? ये लिखा. Let us suppose that we have an electron having charge minus E is revolving in a circular orbit with velocity v. You can say और अच्छे से करना है revolving around the nucleus. Revolving around the nucleus in a circular orbit with velocity v. ठीक है? From figure बेटा, from figure जो प्लस E है ये क्या है? This is the charge on the nucleus. Charge on nucleus minus C is charge on electron. R, this is the distance. Small r के represent कर रहे हैं distance. So electrostatic force. So by using Coulomb's law, electrostatic force of attraction is given as किया जाएगा उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए व्हाट इज द फार्मूला 1 by 4 pi epsilon Q1. यहां पे अपन Q1 की वैल्यू ले लेनी है. Q1 आपका E, Q2 इज इक्वल टू E. इन मैग्नीट्यूड में बात चल रही है दोनों की मैग्नीट्यूड. ठीक है? Q1 इज इक्वल टू E, Q2. क्योंकि देखो इसमें चार्ज नेगेटिव है लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे. वी आर टेकिंग जस्ट सिंपली मैग्नीट्यूड. तो यहां से क्या बन जाएगा ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर. तो यहां से Fe इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught E into E upon R square. It simply becomes as Fe 1 by 4 pi epsilon naught E square by R square is number 1. Clear है? Okay. यह तो कंफ्यूजन बेटा क्लियर है. Now this electrostatic force of attraction will provide the necessary centripetal force which is given as, now this is number 1.
Now this electrostatic force of attraction. Now this electrostatic force of attraction. Now this electrostatic force of attraction. अब ये जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो इसके और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, that will provide the necessary centripetal force to revolve electron around the nucleus. इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, that will provide the necessary centripetal force for the electron to revolve around the nucleus. So now this electrostatic force of attraction will provide the necessary centripetal force, necessary centripetal force, उसको मैं लिखता हूं सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला Fc is equal to mv square upon r. This is number 2 where m is the mass of electron, m is the mass of electron, v इसकी क्या है वेलोसिटी, m बेटा मास है, v आपके पास क्या है वेलोसिटी. तो प्रॉब्लम इसमें ओके. नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन वी गेट फ्रॉम हियर. नाउ कंपेयरिंग देखो बेटा कंपेयर क्यों करेंगे, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि इफ ड्यू टू दिस फोर्स पोलराइजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, क्योंकि इसी फोर्स ने तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड की है. तो कंपेयरिंग वी गेट फ्रॉम हियर क्या बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर अपॉन आर. आर से आपका आर कैंसल, तो वी आर लेफ्ट विद क्या रह जाएगा हमारे पास एमवी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर. क्लियर है? दिस इज नंबर 3. क्लियर? ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू मोहर क्वांटाइजेशन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू Bohr's quantization conditions, according to Bohr quantization conditions, जो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. What is the Bohr quantization condition? Angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi. Angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है? तो यहां से एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिखता हूं, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू mvr. तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और v की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी आपके पास, v इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mr. v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr. दिस इज नंबर 4. यहां तक प्रॉब्लम किसी को हमारे पास बेटा 4 इक्वेशन आ चुकी हैं. दिस इज आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्लियर है? ओके. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड. क्लियर? ओके. नाउ पुटिंग इक्वेशन 4, now putting equation 4, putting equation 4 in 3, we get क्या बन जाएगा बेटा, यहां से हमारे पास बन जाएगा m. what is the value of v from here, nh upon 2
2 पाई एम आर इज इक्वल टू स्क्वायर आ गया इसका एम, ये v का स्क्वायर, v की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, NH अपॉन 2 पाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाई r। तो प्रॉब्लम ओके, m n स्क्वायर s स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाई r। क्लियर है बेटा? ओके, अब यहां से क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, देखो m से आपका m कैंसिल हो गया यहां से, एंड r से आपका r ये कैंसिल हो गया यहां से, क्या है गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। इसको यहां से, तो अब बेटा मैं आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द n, सॉरी आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, मेरे को r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से, तो हाउ कैन आई फाइंड आउट इट, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये r आपका यहां चला जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहां डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ गया बेटा यहां से, इनटू n स्क्वायर s स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, e देखो यहां मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, e स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू r। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r, the value of r that we obtain from here, the value of r is found to be 4 pi epsilon naught m square s square upon 4 pi square m e square। r is equal to 4 pi epsilon naught m square s square 4 pi square m e square, this is number 5, this is number 5। so from here, so from 5, radius of nth orbit of hydrogen atom, radius of nth orbit, radius of nth orbit of hydrogen atom is given as, radius of nth orbit of hydrogen atom is given as, क्या रेडियस बन जाएगा बेटा यहां से, दोस्तों nth orbit की रेडियस को rn, सेम इक्वेशन यही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर s स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। अब आप इसको गौर से चेक करेंगे तो कैसे लिखता हूं, आई कैन राइट इट एज rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब आप सोचो कैसे, क्योंकि बेटा देखना यहां से, ये जो आपके पास आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, h आपके पास कांस्टेंट, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया ना, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, m is the mass of electron, this is also constant, and e is the charge, this is also constant। तो सारे क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, s स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, m मेरे पास कांस्टेंट है, e स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो यहां से क्या आएगा आपके पास, radius of nth orbit of hydrogen atom is directly proportional to n square, that we can say that radii increases in the ratio, if n is equal to 1 2 3 4, the radii increases in the ratio, radii increases in the ratio 1:4:9:16, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 बन जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 4, 3 पुट करूंगा तो 9 और 4 पुट करूंगा तो 16। क्लियर है? सो
सो दिस इक्वेशन नंबर 6 लिखते हैं ऐसे। ओके, अभी हमारे पास इक्वेशन आई थी, या तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को बेटा क्लियर है? चले आगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अभी मैंने क्वेश्चन निकाला था, क्वेश्चन मेरे को मेरे पास ही वैल्यू आ गई थी। अब मैंने पीछे क्वेश्चन किया था एम्पियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x अपॉन 2 पाई। यहां से तो मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ गई थी? मेरे पास v की वैल्यू थी nh अपॉन 2 पाई mr, यही वैल्यू थी। एम्पियर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई मैंने किया भी, तो v की वैल्यू मेरे पास क्या थी? nh अपॉन 2 पाई mr। क्लियर है? अब मेरे को यहां से r की वैल्यू उठानी है और मेरे को यहां पुट करनी है। ठीक है, मैं इस इक्वेशन का नंबर भूल गया, मेरे को कितना है, लेकिन चलो मैं पुट कर देता हूं यहां से। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 5, नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 5 इन दिस इक्वेशन, वैल्यू हो जाएगी बेटा यहां से v इज इक्वल टू, यहां से v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। क्लियर है? nh upon 2 pi m, this is the value of r. So after simplification what I got from here, देखो nh से बेटा एक n और एक s कट गया यहां से। ठीक है, so यहां से you can see क्या बन जाएगा, ये v is equal to, ये बन जाएगा 1 upon, ये 4 पाई नोट यहां पे 1 by 4 pi epsilon नॉट। ठीक है, 4 पाई m e स्क्वायर, ये ऊपर चल जाएगा 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर अपॉन 2 पाई m इंटू nh। यहां से तो वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन जाएगा? लेट्स सी फ्रॉम हियर। तो v की वैल्यू बड़ा क्या बन जाएगी? यहां से मेरे पास v की वैल्यू जाएगी v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर अपॉन 2 पाई m इंटू nh। इस m से बेटा ये m कैंसल, 2 पाई से ये 2 पाई आ जाएगा, यहां कैंसिल हो गया। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी? v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई e स्क्वायर अपॉन nh। इसी नंबर 7, इसी नंबर 7। सो इट आल्सो ये था, तो इक्वेशन 7, सो इक्वेशन 7 represents the equation 7 represents the velocity of nth orbit of हाइड्रोजन है। यहां से क्या बन जाएगा आपके पास? Vn is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi e square upon nh. This is the velocity of nth orbit of hydrogen atom. तो ये फॉर्मूला भी हम लिखते हैं से Vn is equal to 1 by 4 pi epsilon naught
2 पाई ई स्क्वायर अपॉन NH। इसको नंबर देते हो आप यहां से। फिर बात नंबर 7, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन NH। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट we have to discuss the energy. We have to find the energy. क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा ये। Now energy as a electron is revolving, as electron is revolving around the nucleus, so it possesses both kinetic energy and potential energy. Kinetic energy due to motion of electron, kinetic energy कैसे है? due to motion of electron around the nucleus, and potential energy due to position of electron. So kinetic energy of revolving electron is given as, so kinetic energy of revolving electron kinetic energy of revolving electron is given as, what is the formula for kinetic energy beta? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? E K फॉर काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होगी इसकी नंबर 8। आई थिंक इट वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो मैंने अपनी लिखी थी स्टार्टिंग में लिखा था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, और मैंने R से यहां से R कैंसिल कर दिया था। अब मेरे पास वैल्यू आएगी mv स्क्वायर की 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई R। दिस वाज आई थिंक इट वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो mv स्क्वायर की वैल्यू आपने बेटा यहां से यूज करनी है, यहां पे पुट कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर? द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर कॉरेस्पॉन्ड टू बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई R, and we obtain from here kinetic energy EK 1 by 4 by epsilon naught E square by 2R, and this is number 8। ठीक है, now electric potential energy is given as electric potential energy। now electric potential energy is given as, now electric potential energy is given as, electric potential energy, what is the formula for electric potential energy? क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू यहां पे आप ले लें प्लस E, और Q2 की वैल्यू आपने ले यहां पे माइनस E। क्लियर है? तो यहां पे EP इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा यहां पे E, दिस इज, क्योंकि बेटा देखो ये है एनर्जी है, एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। अब पीछे जैसे फोर्स लिखी, वहां पे हमने इसकी वैल्यू को भी पॉजिटिव में लिख दिया, मैग्नीट्यूड में लिख दिया। ठीक है कि नहीं? लेकिन बेटा देखो ये जो है एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जो पॉजिटिव तरफ है वो पॉजिटिव लिखी जाएगी, नेगेटिव है नेगेटिव लिखी जाएगी। इस पे चार्ज कैसा है आपका? पॉजिटिव है।
न्यूक्लियस पे यहाँ चार्ज नेगेटिव तो नेगेटिव ही लिखे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास EP -1/4πε0 क्योंकि एनर्जी है पॉजिटिव वाली टर्म, जिस पे चार्ज पॉजिटिव वो पॉजिटिव, जिस पे नेगेटिव है वो नेगेटिव। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नंबर 9। एनी कंफ्यूजन? Now total energy of the revolving electron is given as, now total energy of, क्योंकि उसमें देखो पीछे क्या था, जो फोर्स वाला कंसेप्ट था, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वो तो हमने मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव दिखा दिया, लेकिन ये तो स्केलर है तो एज इट इज आएगा ये तो। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, total energy of revolving electron is given as, क्या जाएगी total energy इसकी, total energy of revolving electron, energy total, तो यहां से एनर्जी टोटल आपके पास आ जाएगी E काइनेटिक प्लस E पोटेंशियोमीटर, ठीक है। काइनेटिक क्या बन जाएगा आपके पास 1/4πε0 E²/2r, और पोटेंशियल यहां से -1/4πε0 E²/r। कोई कंफ्यूजन? ओके, क्या बन जाएगा आपके पास यहां से E = 1/4πε0 E²/r -1/4πε0 E²/r। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा आपके पास, यू कैन सी E = 1/4πε0 E²/r 1/2 - 1 E = 1/4πε0 E²/r, किया जाएगा आपके पास -1/2, and the energy that you obtain from here, that is E = -1/4πε0 E²/2r. This was the formula for the total energy, and this equation number 10. This is equation number 10. E is equal to -1/4πε0 E²/2r. Now using the value of R from 5 in 10. Using the value of R from equation 5 in the value of R from equation 5 in equation from equation 5 in equation 10. तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास E is equal to, ये आपके पास आ गया यहां से -1/4πε0 E²/2. I have to put the value of R from here. So क्या वैल्यू आ गई 4πε0 n² h² upon 4π² me². तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगा E is equal to -1/4πε0², यहां से 1/4πε0 ये 1/4πε0 ये स्क्वायर हो गया यहां से। E 2 से 2 कैंसिल बेटा, यहां से 2 2 4, 2 से 4 कैंसिल करने में 2 आ गया यहां पे, तो ये ऊपर चला जाएगा 2π², ये ऊपर चला गया m²,
E square E4 upon N square N square. This is the formula for energy of electron in the nth orbit of hydrogen atom. So En is equal to minus 1 by 4 pi epsilon square into 2 pi square Ne4 upon N square H square. This was the energy of electron in the nth orbit of hydrogen atom. So this is the formula for energy. En is equal to minus 1 by 4 pi epsilon square 2 pi square Me4 upon N square S square. This is number 10. So equation 10 gives the equation 10 gives the क्या देता है equation number 10 is the energy of electron. Equation 10 gives the energy of electron in nth orbit of hydrogen atom. ठीक है, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू.